In fact, it is my maiden session in Mangalam classes, and I had called you my near and dear. Near and dear does mean what? जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो, और जो आपके दिल के काफ़ी करीब होगा वो आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को, वॉट एवर प्रॉब्लम यू वुड हैव इन योर माइंड, इट विल बी सर्टेनली टारगेटेड एंड इट विल बी सॉल्व्ड आउट. अब एक वर्ड आता है सॉल्व. आउट. एक बात हमेशा मान के चलिए कि जब भी कोई वर्ड, चाहे वो नाउन हो, कोई भी वर्ड हो, हर वर्ड क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट एवरीथिंग इज ए नाउन. What is noun? Noun does mean a naming word. It may be adjective, adverb, verb, whatsoever. But first of all, it is a naming word. That we should keep in our mind, that everything in this world is a naming word. In fact, I would like to make you understand why you should at least once visit Mangalam classes. At least you visit. I don't ask you to join, but you must visit. What will be the best platform to get success as an aspirant? As an aspirant. अब देखिए, as a aspirant तो नहीं बोल सकते हैं, as an aspirant. Aspirant does mean what? जो कोई भी बच्चे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, whosoever is there to get success in competitive exams, they have targeted, they have selected, they have opted for an objective. What they have to do to get success as an aspirant? देखिए, you must does mean what? It is itself a model. Have you heard about model? Model is what? It is itself a verb that never takes to be verb. To be verb क्या होता है? To be verb does mean is, am, are. अब इसके फिर past tense भी होंगे, लेकिन मॉडल्स के बाद कभी भी टू बी वर्ब नहीं होता है. यू मस्ट ज्वाइन. हमारी एक सलाह है, आप एक बार आके मिलिए, देखिए. व्हाट वी कैन डू फॉर यू, हाउ कैन वी सर्व यू द बेस्ट. व्हाट वी डू प्रोवाइड particularly about communication skill. In fact, my dear friends, tell me, what is the unique attribute to the human being? The unique attribute to the human being is communication skill. Although every biological entity has its own skill, particularly communication skill. Even animal speaks. They can both understand. And what is communication skill? Communication skill does mean that हम जो बोले, जिस भाषा में बोले, आप जवाब भी उसी भाषा में दीजिए. If someone has asked you something in your native or local language, you are supposed to respond in local language. That is communication skill. If we are talking about English communication skill, if someone has asked or put forward you a sentence or a question before you, you are supposed to respond in the same language. Only then it can be said that it is communication. It is always two-way process. It is always two-way process. हमने कहा, आपने सुना, समझा और मेरी ही भाषा में हमको बताया. एक खास बात है जो
हमारा ये विशेष चीज़ है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, और आप हमारे एज को देख के समझ रहे होंगे। आई हैड डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी इन 1993, नॉट दैट मच ओनली, आई एम एन एम.फिल। और आप ये तो समझ ही सकते होंगे कि हमको देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जीवन का अनुभव लंबा है। आई हैड सर्व इन द डिफरेंट कॉरपोरेट हाउसेस लाइक मोदी जेरोक्स, कैनन, नेटवर्क. These were the big houses, GBC Modi, where I had served as a manager. But yes, sometimes it happens that you are being compelled to shift your job. I was. और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस, चाहे वो हिंदी का हो इंग्लिश का हो, उसको हेडलाइंस को अगर आप समझ पाए तो ये आपको बहुत फ़ायदा देता है. फॉर वॉट वी डू मेक यू टू एनालाइज, इंटरप्रेट एंड इन्फर द सेंस ऑफ द हेडलाइंस. इन्फरेंस. What is the word inference? How many of you are knowing the word inference? Analysis, analyze. Most of you are knowing. But what is inference? Inference does mean that after analyzing and knowing everything, what sense you have got, that is inference. And this is the most valuable thing. और हेडलाइंस को और उसका क्रक्स. क्रक्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग द वर्ड क्रक्स? उसमें निहित बातें. उसमें क्रक्स डज मीन निहित बातें. उसमें कहना क्या चाहा, जो कहना चाहा आप उसको समझ रहे हैं. उसके क्रक्स को मतलब मूल भाव क्या है, वो क्रक्स कहलाता है. और आप जान जाइए कि एक हेडलाइन से ही वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंटायर इवेंट्स, इंसिडेंट और व्हाट्सोएवर हैज हैपेंड. इवेंट्स, इंसिडेंट डज मीन हैपनिंग्स. वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे अगर आप हेडलाइंस को समझ गए एनालाइज करना. वी कैन मेक यू श्योर एंड एश्योर. अब देखिए दो वर्ड है, वी कैन मेक यू श्योर एंड एश्योर. श्योर डज मीन सब जानता है, श्योर हैं हम, श्योर हैं आप. इसका मतलब है यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हाँ ऐसा ही होगा. एश्योर, एश्योर जो वर्ड होता है, दैट समवन एल्स मेक यू टू बी श्योर. Assured does mean someone else will make you to be sure, that is assured. About your achievement, आपको करना क्या है, आपका प्लेटफॉर्म क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. अब वी डू प्रोवाइड द मंत्राज. ऐसे मंत्राज हम वर्ड्स नहीं बोलते हैं, लेकिन लोग इट इज इन फैशन. फैशन का मतलब क्या होता है, हम लोग बोल देते हैं फैशन. फैशन मतलब चलन में, प्रचलित होना. जो फैशन में होता है वो चल रहा होता है, तभी हम बोलते हैं आजकल का ये फैशन है. क्या फैशन है भाई? तो व्हाट एवरीवन लाइक्स इन ए पर्टिकुलर टाइम फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, दैट वी कॉल फैशन. तो आजकल मंत्राज देखते हैं, इट इज इन फैशन, दैट्स वाई. मंत्राज व्हाट इज दैट? सफलता की कुंजी, की टू सक्सेस. हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आएगा उसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन ही लगेगा. की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी क्या है वो हम लोग इंटरप्रेट करेंगे. And feel free, whatsoever doubt, whatever is inside
that you are unable to disclose, but you come to Mangalam classes and disclose, rather express. Expression is what? Communication. आप खुल के बोलिए, हम खुल के बताएंगे, आपके कोई डाउट हो, आपको कोई संदेह हो, हाउ टू गेट सक्सेस। देखिए, सक्सेस का कोई ये मतलब नहीं होता है कि इफ सब तो IAS नहीं बनेगा ना, एवरीवन कांट बी एन IAS, बट यस एटलीस्ट वी हैव टू अर्न आवर ब्रेड एंड बटर। हमको रोजी रोटी तो कमाना है, वही सबसे बड़ी सफलता है कि somehow I am capable enough to earn my bread and butter. That is the success. सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि डॉक्टर बन गए, इंजीनियर हो गए, ऐसा ही नहीं है। फील फ्री टू ब्रेक योर डाउट्स विथ योर ऑल इम्पैथी। अब देखिए, इम्पैथी, सिंपैथी, एपैथी, ये अलग अलग वर्ड है। पैथी का मतलब भावना, सिंपैथी करीब, इम्पैथी दिल से, एपैथी ए जैसे लग जाए किसी वर्ड में तो वो अवे हो जाता है। एपैथी, आई एम एपैथी ऑफ दिस, मतलब हमको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। इम्पैथी, आई एम मच कंसर्न। सिंपैथी, सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। ये आप लोगों ने सुना होगा कि कोई आपसे सिंपैथी रखता है तो वो गोल्ड से भी बड़ा होता है। एंड इट इज ए वेल नोन सेइंग, कम along with us and enjoy a world of difference. You come to us and you will feel that you have come somewhere where you are quite free to disclose, to express you, and sympathetically, empathetically you will speak, sympathetically we will solve. To reach your goal. अब गोल को कितना बात बोलते हैं? गोल, डेस्टिनी, टारगेट, एम, ऑब्जेक्टिव। द बेस्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डज मीन व्हाट? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? फॉर व्हाट यू हैव कम ऑन द अर्थ, दिस इज द क्रक्स ऑफ योर लाइफ। फिर क्रक्स बोले, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? दैट यू आर, ऑल्दो टू बायोलॉजिकल एंटिटी कांट बी आइडेंटिकल, कोई दो सजीव एक जैसा होता नहीं है। ये मान के चलिए, सजीव की बात मैंने की, पेड़ पौधा भी सजीव है, एनिमल भी सजीव है। आइडेंटिटी, इंडिविजुअल लाइक वी आर entirely different from each other, so we must not set the same goal as others have set. You have to set your own goal. You must know who you are, what is area of weakness, what is area of strength of yours. For this you have to analyze, you have to set your objective, you have set to target accordingly, and you will get success if you comes at Mangalam classes. With these all words, I would like to sum up my maiden session with you, my dear, and I hope certainly you come and you feel the difference. We are not motivating, we are not recharging, rather we are making you understand who you are and how you can be reach at your target, at your goal, whatsoever you have said. So rest of the things we will discuss about these all, since it is my maiden session. My dear, come and enjoy with us. Certainly we will pave out. अब देखिए, pave out रास्ता निकालना, हम आपकी सफलता की रास्ता निकाल, we will pave out your way to success. Key to success, pave out your way to success. With these all words, I would like to sum up my class. Thank you.